हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप लोग सभी सुरक्षित हैं और अपने एकेडमिक्स पे पूरा फोकस करके अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो कि आपकी बुक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं उसे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो टॉपिक है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। Look, performance appraisal is something very, very, very important and very much necessary for the growth and development of employees in a particular company or business organization. So, let us first talk about the meaning. What it basically is. Performance refers to your output, your productivity, or your results. And appraisal means the evaluation of the same, the responsiveness of the same by yourself or somebody else. So here performance appraisal is a very good tool which is used by the management of a company or which is used by the line managers for their own sake or for the sake of the employee. Many times जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारी संस्था के कर्मचारी हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका जो काम उन्होंने किया है उसका रिजल्ट उन्हें बताया जाए. इट इज मोर और लेस लाइक द एग्जामिनेशन द स्टूडेंट्स आर getting through and the results they are getting. So performance appraisal is basically a measure which tells them their response, their productivity, their workability, or like what they did and how they did. So let us start with the very first slide. Here we go. Performance appraisal is a systematic, periodical, and an impartial rating of an employee's excellence in the matters pertaining to his present job and his potential for a better job. एडविन बी फ्लिपो, जो कि मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि ये एक सिस्टमैटिक पीरियोडिक मतलब एक समय काल से संबंधित, समय काल से हमारा भी प्राय कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ घंटे से संबंधित हो सकता है, और एक इम्पार्शल मीन्स जहाँ पर हमारे लिए सभी एम्प्लॉयज बराबर रहेंगे, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं रहेगा. तो एक सिस्टमैटिक जिसमें एक सेट ऑफ सीक्वेंसिंग होंगी, एक समय काल को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा समानता का व्यवहार रखते हुए अपने एम्प्लॉयज की एक रेटिंग है ऑन सर्टेन गिवन ट्रेड्स, गिवन स्टैंडर्ड्स, गिवन benchmarks, so that like we can measure them on the basis of their responsiveness to that particular task, and then we can suggest them something better. So next is a performance appraisal is a process of assessing the performance and progress of the employees or a group of employees on a given job and its potential for future development. Yes, this is very important, future development part, because in the earlier chapters of HR we have studied that there is a term used, career planning, and career planning is basically informing the employee about where we can bring or take him up to, or where he can bring himself up to, because it is the potential in himself. ये उसके अंदर की क्षमता है जो उसको ऊपर लेके जा सकती है. So we have to just open a way for him, and it is his labor, it is his vision that where he can proceed or where he can reach. So this performance appraisal part is done not just to evaluate his performance for the present, or it is not just to measure that with the past standards we have fixed, but it is for the future development sake, and which is comparatively more important. So while we do career planning for an individual, it has to be realistic and actual, and for making it happen we need to be evaluative on given performance parameter, and that is what performance appraisal does. देखिए, performance appraisal अगर इसको बिल्कुल सीधा सरल भाषा में कहा जाए, ये एक व्यक्ति का कुछ आधारों पर उसका मेजरमेंट है कि हमने उसको कुछ स्टैंडर्ड दिए थे, उसको कुछ पैरामीटर दिए थे कि यार दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, उसने जो काम किया उसके बाद उसका एवेल्यूएशन, एंड देन वी आर गोइंग टू टेल हिम कि आपने अच्छा काम किया या आपने बुरा काम किया. अगर आपने अच्छा किया तो दिस इज द वे फॉर यू, और अगर आपने बुरा किया तो यू हैव टू रिटेन हियर और यू हैव टू गेट डिमोटेड. अगली स्लाइड देखते हैं हम लोग. ऑब्जेक्टिव्स. आपने ये एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस अप्रेजल की, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? द वेरी फर्स्ट इज टू प्रोवाइड फीडबैक टू द एम्प्लॉय सो दैट दे कैन आल्सो नो देयर परफॉर्मेंस लेवल एंड लूप्स इफ देयर आर एनी. देखिए, ये बहुत जरूरी है. जस्ट लाइक आप बच्चों के एग्जाम लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं? इसलिए ताकि उनकी तैयारी का एक इवैल्यूएशन हो सके कि जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने तैयार किया है, whether they are on the right track or not. So what we are going to do here is
वी हैव टू गिव फीडबैक टू द एम्प्लॉइज कि जो उन्होंने काम किया वो कैसा किया, ठीक किया या गलत किया। और अगर गलत किया है तो देखिए इस तरह की सिचुएशन संस्था में, कंपनी में कई बार आती है, व्हेन यू आर लाइक फाइंडिंग कि कुछ लोग ठीक काम नहीं कर रहे और उसके पीछे कुछ वजह हो सकती है। एक तो वजह है जो उसकी नीयत से संबंधित है और दूसरी वजह है जो उसकी इमोशनैलिटी से, जो उसकी पारिवारिक स्थितियों से संबंधित है। तो ये एक एम्प्लॉयर के तौर पर आपका कर्तव्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि जिन कारणों की वजह से उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आ रही, उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा कि आपके एम्प्लॉइज अच्छा काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, दे कैन बी अ स्टैंडर्ड सेटर फॉर अदर पीपल, और अगर नहीं कर पा रहे तो व्हाट आर द रीजंस। देन हैव टू प्रोवाइड अ वाइटल डेटाबेस फॉर पर्सनल डिसीजन। यहाँ पर पर्सनल डिसीजन का मतलब है व्यक्तियों से संबंधित डिसीजन, उन एम्प्लॉइज से संबंधित डिसीजन जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। कंसर्निंग प्लेसमेंट, पे, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड डिमोशन। देखिए सीधी सी बात है, जब आप मैनेजमेंट के ग्रोथ की बात करते हैं तो आपने डिफरेंशियल वेज सिस्टम पढ़े हैं। डिफरेंशियल वेज सिस्टम का आधार सिर्फ यही था कि जो एम्प्लॉइज अच्छा काम कर रहे हैं या कर सकते हैं उनको आप ज्यादा जो है अमाउंट देके उनको मोटिवेट कीजिए। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो आधार है, ऑब्जेक्टिव, वो भी यही है कि आप एक पूरा जो डिटेल डेटाबेस है, डिटेल डेटाबेस का मतलब है सारी सूचना उनके काम से संबंधित, उनके आने से, उनके जाने से, उनकी प्रोडक्टिविटी से, उनके प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी से, ताकि आगे जो उनकी फर्दर प्लेसमेंट है, उनकी पे प्रोटेक्शन है या पे इंक्रीज है, प्रमोशन है, ट्रांसफर है, डिमोशन है या टर्मिनेशन है, इन सबसे संबंधित डिसीजन लिए जा सके। देखिए आप किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करेंगे, ऐसा एक अच्छे एम्प्लॉयर होने के नाते आपसे उम्मीद की जाती है। परंतु अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा तो अप टू हाउ मेनी लिमिट्स यू विल बी टॉलरेटिंग, आप कितनी लिमिट्स तक उसको टॉलरेट करेंगे। सो आपको ये डेटाबेस जो है, आपको ये जानकारी, ये सूचना जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू मिलती है। देन to diagnose the strength and weakness of individual so as to identify further training needs. Yes, it is very important to understand the present strengths and weaknesses of the individuals. देखिए हम जब प्लेसमेंट की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, हम जब इंडक्शन की बात करते हैं तो हम लोग बार बार इस बात पर फोकस करते हैं कि राइट मैन शुड बी प्लेस्ड ऑन द राइट जॉब। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो शायद किसी और काम में बहुत अच्छा हो सकता है पर अपनी प्रेजेंट जॉब में वो अच्छा नहीं है। सो इट इज how you will be able to know this, it is personal appraisal, it is appraisal, performance appraisal which tells you कि वो कहाँ पर अच्छा है और कहाँ पर नहीं है। और अगर उसको किसी लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है या कम है तो इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि उसको ट्रेनिंग प्रॉपर ना मिली हो या उसको कुछ ध्यान में या उसके कुछ समझ में कुछ कमी रह रही है, तो आप उसको ट्रेनिंग देके दूर कर सकते हैं। पर ट्रेनिंग देने की जरूरत किसे और किसे नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल की काफी ज्यादा जरूरत है। देन टू प्रोवाइड कोचिंग, काउंसलिंग, करियर प्लानिंग एंड मोटिवेशन टू सबऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पर कोचिंग को ट्रेनिंग के सब्स्टिट्यूट की तरह देखा जा सकता है। काउंसलिंग को उनका डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए या फिर उनको काम से संबंधित अगर कोई दिक्कतें हैं उसको पूछताछ करने के लिए एक टूल के तौर पर देखा जाता है। करियर प्लानिंग जैसे कि मैंने सबसे पहले बात की थी, और मोटिवेशन टू सबऑर्डिनेट, जो अच्छा काम करेंगे वो दूसरों के लिए मोटिवेशन का सोर्स बनेंगे, जो अच्छा काम नहीं करेंगे उनकी हम काउंसलिंग करेंगे और हम कोशिश करेंगे उस दिक्कत को जानने की कि what are the things which are stopping him to perform better. Then to develop positive superior subordinate relationship and thereby reducing grievances. देखिए अगर किसी व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी की रिपोर्ट अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके मन में उसके सुपीरियर के प्रति दुर्भावना आ सकती है कि मेरे सुपीरियर ने मेरे प्रति अच्छी भावना न रखते हुए मेरी रिपोर्टिंग गलत की। पर परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने पहले बात की कि सबको एक तराजू में तोलना, इम्पार्शियल, सबको आप एक तराजू में तोल रहे हैं। और यहाँ पर जब आप सबकी कमियां उजागर कर रहे हैं, इंडिविजुअली उजागर कर रहे हैं, और इसका एकमात्र उद्देश्य उनको किसी भी तरीके से इंसल्टेड फील करवाना ना होके उनको मोटिवेट करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है और उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, तो कहीं ना कहीं सुपीरियर सबऑर्डिनेट भी एक दूसरे को अच्छे निगाहों से देखते हैं और एक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक दूसरे से बात करते हैं। एक दूसरे की जब आप कमियां बताते हैं तो सामने वाले के दिमाग में ये होता है कि ये व्यक्ति हालांकि मेरा शुभचिंतक है और कहीं ना कहीं इससे आपसी संबंध जो है मधुर होंगे और बीच में समस्याएं जो उनकी कमी होगी। तो फैसिलिटेट रिसर्च इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या मैं सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं, ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिसर्च। जैसे कि आपने डिफरेंशियल वेज सिस्टम पढ़ी है या फ्यूल के और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं आपने पढ़े हैं, देखिए उसमें एक
चीज है वो टाइम टू टाइम ह्यूमन बीइंग की स्टडी करता है, ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी की, प्रोडक्टिविटी की और एटमॉस्फेयर फैक्टर्स की स्टडी करता है कि हाउ वी कैन मेक हिम वर्क बेटर. सो दिस इज व्हाट एचआरएम डज. एंड एचआरएम के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल ये काम आपसे करवाता है कि continuously study of the individual needs, individual performance, individual requirements, और वो चीजें हम आगे उनको दिक्कतों को दूर करने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं. Then to test the effectiveness of recruitment, selection, placement and induction. जो आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो किया, जो आपने सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो किया, देन आपने इंडक्शन करवाया, प्लेसमेंट करवाई, तो वेदर दैट इज इफेक्टिव. इफेक्टिव तब होगी जब आप जैसा चाहते थे, जो चाहते थे वैसा हो रहा है. अगर वो नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है चीजें कहीं ना कहीं सेफ और साउंड नहीं है. तो उनकी इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए भी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस. देखिए प्रोसेस मीन्स वो प्रक्रिया जो आप परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए, परफॉर्मेंस को जज करने के लिए फॉलो कर रहे हैं. सबसे पहला स्टेप है आपका सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का मतलब है बेंचमार्क्स या वो जो एक लेवल है जो आप उनसे अचीव करने की उम्मीद रखते हैं. दिस इज सपोज टू बी common, this is supposed to be standardized on the basis of the performance level of like masses. आप किसी एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस के आधार पर उसको बेंचमार्क सेट नहीं कर सकते. हाँ, आप 20 से 50 लोग जो कि अलग अलग एज ग्रुप के हों या फिर अलग अलग परफॉर्मेंस लेवल के, उनके ग्रुप को आप उनकी परफॉर्मेंस को आप मेजर करके उसके बाद जो उसका रिजल्ट है उसको आप एक स्टैंडर्ड के तौर पर एस्टैब्लिश करते हैं. देन इज और इसके लिए आप सहायता ले सकते हैं अपने टीम लीडर्स की, अपने लाइन मैनेजर्स की, एक्सपीरियंस लोगों की जो वाकई उस काम को कर चुके हैं या उस काम को करने का उनका काफी तजुर्बा है. क्योंकि अगर यहाँ पर गलती हो जाएगी तो आगे का सारा प्रोसेस जो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा. तो सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इनके निर्धारण का काम बड़े सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर गलती होती है तो आगे की सारी प्रक्रिया जो है डिस्टर्ब हो जाएगी. देन कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स. कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स टू दोस्त जिन्होंने वास्तविकता में काम करना है. यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं जिनका हमने अप्रेजल करना है. तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे और उसके बाद उन स्टैंडर्ड्स की जो कम्युनिकेशन है वो उन लोगों को दे देंगे जिनसे हम काम करवाने की अपेक्षा रखते हैं. उसके बाद हम उनसे पूछ सकते हैं, इस बारे में भी जो है दरवाजे खुले रखने चाहिए कि whether they have anything to say on this, क्या उनको कोई एतराज या कोई बातचीत है जो वो पूछना चाहते हैं हमसे. अगर उनको कोई एतराज नहीं है तो ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड उनको हम दे देंगे और उनको इसके हिसाब से काम करना है. ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं कि आपको इतना काम करना है, इतने समय में काम करना है और इतने बेंचमार्क के साथ काम करना है. देन मेजरिंग परफॉर्मेंस. थर्ड स्टेप है आप जो उन्होंने काम किया उसकी मेजरमेंट करेंगे. इट इज अगेन वेरी इजी और ये मैनेजमेंट के प्रोसेस की तरह ही है कहीं ना कहीं. कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड्स. अब जो उसका रिजल्ट है, आउटपुट है और जो आपने उसको स्टैंडर्ड दिए थे उनको आप मेजर करेंगे. और मेजर करने के बाद आप गैप फाइंड आउट करेंगे, डिस्कशन रिजल्ट्स. जो उसने काम किया है अगर वो पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है. देखिए यहाँ पर आप 5, 7, 10% का जो लूप है या 1, 2, 3% का जो लूप है अप डाउन है उसको आप ओकेजनली जो है वो बेयर कर सकते हैं. बट अगर उससे ज्यादा है, नॉर्मली 1 से 2% का रहता है ये. अगर 100 यूनिट का स्टैंडर्ड है तो ठीक है, 98, 99 हो गया, चल जाएगा, वो भी ओकेजनली. If it is constantly going into this particular direction, then probably you have to reduce the standards or you have to increase the performance. So discussion of results with the individuals जिन्होंने काम किया, आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो लोग वास्तविकता में काम के साथ जुड़े हुए थे तो उनकी परफॉर्मेंस का जो आउटपुट है वो उन्हीं के साथ शेयर किया जाए. और उसके बाद अगर किसी का लूप है, किसी की दिक्कत है तो हम उनसे बात कर सकते हैं कि व्हाट आर दी रीजंस. अगर किसी का कोई जायज रीजन है तो हम उसको दूसरा चांस भी दे सकते हैं. देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन. टेकिंग करेक्टिव एक्शन में अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग दी जाएगी. अगर वो कॉन्स्टेंटली पुअर परफॉर्मर है तो उसके लिए डिमोशन एक रास्ता है, पे को कम करना एक रास्ता हो सकता है. बट नॉर्मली वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड थिंग only for those who wishes to progress, who wishes to work good, and it is a kind of problem for those who are lazy, who are not willing to work. So students, this was the topic of performance appraisal. हालांकि चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ और वीडियो की लंबाई को छोटा रखने के लिए अभी यहाँ तक करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आगे का पोर्शन आपका डाला जाएगा. In case if you have any doubt related to all these things जो अभी बताई गई हैं, you can get back to me. Thank you so much. आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए.
और सरकार को सपोर्ट कीजिए, जो भी मेजर सरकार द्वारा सजेस्ट किए जा रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।